palms sweaty, heart racing, stomach in knots. You can't cry for help. Not only is your throat too tight to breathe, but it would be so embarrassing. No, you are not being stalked by a monster. You are speaking in public. A fate deemed by some worse than death. See, when you're dead, you feel nothing. But on a podium, you feel stage fright. I have with me someone who beat stage fright and how. 11-time TEDx speaker, and maybe by the time you're watching this, he might have just given his 12th. He is a cyber law champion, a serious actor who acts in theatre too, and he is all but 26. Ladies and gentlemen, I have with me my friend Sakshar Duggal, who is here to coach us as to how we can become a TEDx speaker. This is the specific ask. Hi Sakshar. It's always a pleasure to speak to you, to sit with you and to learn from you. आज भी कुछ सीखने के लिए मैंने I've actually called you, and साथ में ही नहीं सीख रहा, बहुत सारे लोगों को साथ में सिखा रहे हैं. As I've already given in your intro that you've been on TEDx 11 times, which is probably the maximum number of times anybody's given a TEDx talk in India. In AI and technology, yeah. You're being too modest right now. नहीं, seriously. मेरी फील्ड में हाँ इतनी किसी ने नहीं दी है, but I think 11 TEDx talks is pretty It's rare. It's rare. And what? How old are you? 18? 26. 16? So for a young fellow like you, and I really want to understand, how did you start preparing for TEDx? What was your process like? First TEDx talk कैसे आई आपके पास, और आपने what's your process? सबसे पहले ये बताओ कि process क्या है and how do you do it actually? So I'll go step by step. Yeah, please. First TEDx तो मैंने सोचा है public speaking अच्छी लगती है, करते हैं. I used to go to different schools and colleges. Yeah. थोड़े बहुत, but मैंने लगा रखा था aim कि जी पहले हम कुछ platforms पकड़ेंगे, फिर TEDx सोचेंगे जब कुछ platforms हो जाएं, और उसके बाद TED main this thing. Yes. तो TEDx कभी सोचा नहीं था मैंने. I was trying different platforms. एक दो बार TEDx मेरे को फॉर्म भी आया, बट मैंने नहीं भरा. I was like भाई अभी कहाँ, अभी तो हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है, तो TEDx छोड़ो. नहीं क्यों नहीं भरा? बिकॉज आई वाज लाइक कि भाई मैं पहले सारे प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा कर लूँ, लोकल प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, देन TEDx इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो मैं फिर उसको स्टेप बाय स्टेप, आई यूज्ड टू बिलीव इन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, व्हिच इज नॉट अ बैड वे. तो वो किया देन समहाउ आई वाज ऑन दिस थिंग ऑन लिंक्डइन ओनली. आई गॉट अप्रोच्ड बाय समवन एंड शी वाज लाइक कि तुम TEDx बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट स्कैम है. क्यों? मैं खुद भी ऐसे एक दो केसेस देख चुका हूँ जहाँ स्कैम होते हैं, पे 2 lakhs एंड यू गेट अ TEDx सीट, तो फ्रॉड ही है. I thought fraud है. And you're a cyber law expert. In any case, you know all these scams keep happening every day, deepfaking, phishing, whatnot. So, and the beauty is that day when I got approached in the evening, in the morning only I was talking to someone about this, and he was saying कि यार मेरे साथ तो fraud हो गया, ये है वो है. And शाम को मेरे को मैसेज आया, मैंने कहा मेरे साथ भी ये हो रहा है. तो मैंने देख के इग्नोर मार दिया. अच्छा 2 दिन बाद फिर उन्होंने बोला साक्षर क्वेश्चन मार्क. तो मैंने कहा अच्छा बात कर लेते हैं. फ़ोन पे बात की. I understood, then I realized नहीं यार ये तो सच बोल रहे हैं. Yeah. तो मैंने कहा, and I asked them, मैंने कहा कोई पैसे नहीं लोगे? कहते why would we ask money यार. Wow. Then I thought कि ठीक है, अब टॉपिक क्या है? तो टॉपिक दिया बोला कि आप बताओ. मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग में बोलूँगा मैं, because I love public speaking. They were like sorry we are not interested. बहुत बोल लेंगे, आप बोलो टेक्नोलॉजी के बारे में. In those days metaverse was the buzzword. Yeah. So metaverse के बारे में बात करो आप. अच्छा ठीक है, हालांकि नहीं करना था, बट मैंने कहा यार मिल रही है तो कर ही लेते हैं. Nice. Then first TEDx happened. After that I got the confidence. मैंने कहा अब मैं अप्लाई करूँगा. Very nice. So then I started to approach different people here and there, and thankfully AI came in. So I used to talk about AI. वहाँ से कुछ attraction मिल गई. फिर एक वो तरीका सीख लिया कि यार approach कैसे करना है. वहाँ से फिर So then the path was clear for you, right? कई बार ऐसे ही होता है ना, पहली बार जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, you stumble upon something. Some other person or some other avenue opens up because the universe gives you that chance. You grabbed onto it and then you went on your path. Let's say for the first talk, जब सबसे ज़्यादा jitters होते हैं, जब आपका दिमाग आपको कह रहा होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम फेल हो रहा होता है, कहता है भाई ये नहीं होगा, right? And you're there scared in that moment. How did you prepare for it? What's your process like? So there is a hack. Ever since I was small, so mom dad used to tell me इसको बोलो नहीं हो सकता ना तो होगा, तब करेगा.
So now I've realized that, and now I tell my parents specifically. Now they know it's an unsaid thing कि जब भी कुछ event आ रहा हो तो कुछ होता है, somewhere or the other they tell me यार नहीं हो पाएगा, you can't do it. Then it gives me the drive कि अब करना है. Reverse psychology. Interesting. तो मतलब वो तुम्हें challenge करते हैं कि साक्षर यार. Indirectly मतलब क्योंकि अब उनको पता है कि मेरे को भी पता है reverse psychology के बारे में, so subtly they'll put कि you know कि for example, for my first TEDx, so I was a bit this thing कि TEDx है क्या बोलना है. Topic was such कि मेरे को आता है, but TEDx है तो क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे पता नहीं. And I went to the rehearsal one day before and मैं भूल गया सारा अपना content वहाँ पे. So I was like क्या करेंगे because आपको red dot पे खड़ा करा देते हैं, lights off. तो मैंने कहा क्या करूँ, घर आया मैंने कहा यार बड़ी टेंशन हो रही है वो. Then they were like कि छोड़ दे यार क्या होगा ठीक ही हो जाएगी, देख अच्छा तो तू इतना नहीं कर पाएगा इस बार, फर्स्ट टाइम है. तो दैट वे आई टुक, मैंने कहा अब तो करना है, अब नहीं हो सकता. सो दैट फिर थोड़ा प्रिपेयर किया, बट इन द मॉर्निंग आई वाज लाइक भाई अब तो करूँगा. सो वो रिवर्स साइकोलॉजी वर्क्स. नहीं ये पेरेंटल टेक्निक बहुत अमेजिंग है. व्हेन आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट लास्ट ईयर ना, सो आई इन्वेस्टेड इनटू द स्टूडियो एंड व्हाट नॉट, पैसे लगाए मैंने. माय मदर को पता नहीं तू क्या करता रहता है यार, तू तेरा फितूरी नए आते रहते हैं, तू पैसे खर्च करता रहता है, तेरे को अकल ही नहीं है. मैं तेरे को 1 साल का टाइम देती हूँ, मेरे को बताना क्या किया तूने. मैं कहा अम्मा 2 साल का टाइम तो दे देना, राइट. एंड नाउ वेन एवर आई शो हर लाइक एन अनकट एडिट और वट एवर, एंड आई शो हर कि ये देखो इनके साथ ये बात हुई, देखो ये एक अच्छे बड़े सिविल इंजीनियर आए मेरे पास, देखिए एक आर्किटेक्ट आए थे, इनसे बात ये हुई. एंड शी लिसन्स टू दैट कॉन्वर्सेशन, कहती यार तू अच्छा ही कर रहा है, तू कुछ अच्छा ही सीख रहा है, अच्छे लोगों से ही मिल रहा है, सो वट एवर यू डूइंग इज़ फाइन. बट माई मदर इवन टुडे, हाँ तेरा तो वो पॉडकास्ट होगा, यू नो. एंड शी विल ऑलवेज रिजेक्टेड, यू नो, शी विल नेवर लिसन टू एनीथिंग कम्प्लीटली, पूरा कभी नहीं सुनेंगी, और मन खुश होती रहेंगी कि चल जो कर रहा है ठीक कर रहा है. यू नो, दिस पेरेंटल टेक्निक वर्क्स रियली वेल. Was it the first time where you spoke without a paper in hand or something that you were reading out of, or were you habitual of memorizing a certain speech that you'd prepare and then you give it? क्योंकि written पढ़ना स्टेज पर अलग तरीके से हो जाता है, और वो याद करके या एक स्ट्रक्चर बना के उसको विदाउट अ पेपर एंड जस्ट बीइंग वेरी आउट देयर, वो एक तरीके की अलग तरीके की स्पीच होती है. नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट. Was that a challenge for you? It was not. Why? Because I've been doing theatre for the past 11-12 years now. Oh. So theatre की वजह से वो एक है कि चलो stage fright नहीं था. I was fortunate. आदत है. And मतलब that worked. That helps in public speaking and everything. Yeah. फिर वॉइस मॉड्यूलेशन होती है तो वो नेचुरली आ जाती है स्टेज पे, बिकॉज इतना थिएटर में उन लोगों ने रगड़ा है एग्जैक्टली कि आपको करना है. तो दैट वाज नॉट अ चैलेंज एज सच. दैट्स नॉट बैड यार. मेरा बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि मुझे पता है कि अगर 20 मिनट बोलना है तो, या 10 मिनट बोलना है या 15 मिनट बोलना है, आई कॉन्ट स्पीक विदाउट अ पेपर. अगर बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करना, दैट्स ईजियर, एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस लाइज. कॉन्वर्सेशंस आर सिंपलर फॉर मी compared to speeches. So what you do is completely alien for me, and that is why all these questions कि यार कैसे, how is it possible? Plus, do you think you have to be a complete master of the trade or the master of the topic that you're actually talking about? How deeper do you go into research? How hard do you study overnight before that? या एक हफ्ता पहले या 10 दिन, कितने दिन की प्रिपरेशन होती है एक TEDx talk से पहले? आई थिंक TEDx में नहीं, कोई भी टॉक हो, कंसिस्टेंसी, वही वो क्लीशे वर्ड बोलूँगा मैं, बिकॉज अगर मान लो कल टॉक है मेरी, एंड जनरली टॉक्स का क्या होता है, आपको या तो इफ़ यू आर फॉर्चुनेट 1 मंथ पहले आपको पता लग जाता है, स्टिल यू हैव टाइम. बट आई पर्सनली बिलीव आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, बिकॉज एक रात पहले तो आप एंग्जाइटी है, कुछ है, नहीं कर पाओगे. और वो कहते हैं ना, एग्जाम से एक रात पहले जो पढ़ते हो फिर एग्जाम के दिन भूल जाते हो. तो सेम चीज़ है विद द टॉपिक. आई थिंक यू शुड बी नाउ पर्सनली आई प्रिपेयर इन सच अ वे कि यार अब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आई मेक नोट्स विद रिस्पेक्ट टू कि यार कल को स्पीच आएगी तो क्या बोलूँगा. अ पंच लाइन, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग एन आर्टिकल, अ पंच लाइन इज देयर, और अ यूट्यूब वीडियो, समथिंग और द अदर इज देयर विच आई कैन. एंड मेरा क्या होता है, जनरली आई गिव लॉट ऑफ मेटावर्स. सो मैं उससे भी कनेक्ट कर देता हूँ कि यार ये है, मेटाफर ही आ रहा है, अच्छा नोट्स बना लिए. एग्जैक्टली. प्रिपेयरिंग इन सच अ वे दैट टुमारो यू हैव योर नोट्स रेडी कि एज इट इज इसको मैंने डाल के बोल देना है. Do they give you a fixed time in a TEDx talk कि इतने मिनट बोलना है? 18 minutes is the max. They have a timer running in front of you? हाँ. And obviously by chance sometimes flow में speakers ज़्यादा बोल जाते हैं, then फिर editing में वो cut होता है. But I've seen a few speakers as well जो 35 minutes plus भी गए हैं, जिनकी फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि यार कितना कट करेंगे हम. And बेचारे जो organizers हैं, they get the problem. Why? Because
क्या कट करें क्या ना करें, देन दे हैव टू ट्रबल द स्पीकर एज वेल, क्योंकि आप बताओगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कट कर दिया, ये है वो है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. Why would they limit it to 80 minutes? Because there are like a lot of speakers for the day, or is there like a attention span? I personally feel, I don't know the main reason, but I feel attention span. 18 minutes is also too much in these days. 18 minutes. That's true. Because I was reading somewhere, so people like Bill Gates, उनकी तक अब लोगों ने TED Talk पूरी नहीं देखी है, फॉरवर्ड कर करके कि आप मेन पार्ट देख लिया. Right. Our attention spans have gone for a 6. So 18 minutes is something which I think is more than enough. But हाँ, if you ask me personally, मैं तो 13-14 minutes, max 15 minutes रखता हूँ, because and that too something that you're actually drawing value from and you really want to watch from front to end. तभी आप देखते हो, otherwise नहीं देखते हो. और you're talking about 18 minutes. अभी तो ये हाल हो चुका है कि हम एक रील भी अगर 1.5 मिनट की है तो we just skip over it like 15 seconds की, अभी हो गया बस. अच्छा ठीक है, हाँ ये आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग. हो सकता है एक अच्छी इनसाइट बाद में आ रही हो, दैट्स व्हाई यू हैव टू लाइक कैप्शन में भी वो डालना पड़ता है, वॉच टिल द एंड. तो वो बताना पड़ता है लोगों को कि लास्ट में कुछ अच्छा गिव अवे है. हाउ डू यू अप्लाई फॉर अ TEDx टॉक दीज डेज? व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? अगर आप कहीं पर करना है तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि हो रही है, एंड यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है या कहाँ होती है, किस तरीके से पता चलता है? इनिशियली तो आई ऑलवेज बिलीव दैट इंडिया इज़ ऑल अबाउट जुगाड़. मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ जुगाड़. सो आफ्टर द फर्स्ट TEDx आई रियलाइज कि अच्छा दे सकते हैं, देखते क्या कर रहा है. बिकॉज अच्छा वहाँ पे भी वही सेम, आई विल ब्रिंग दिस साइकोलॉजी अगेन एंड अगेन. सो आई एम पार्ट ऑफ टोस्टमास्टर्स. सो टोस्टमास्टर्स फॉर द रेफरेंस इज अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म. सो अलग अलग क्लब्स होते हैं, मैं वहाँ शुरू से था बिफोर TEDx एंड ऑल. आई यूज्ड टू लव पब्लिक स्पीकिंग. अच्छा वहाँ TEDx दे दी तो मुझे लगा यार अब तो मेरे को लोग इंपॉर्टेंस देंगे, मैं TED स्पीकर बन गया हूँ. बाद में पता लगा दैट देयर वर स्पीकर्स हु हैड गिवन 3 to 4 TEDx's. तो अब मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है. Many fish in the sea. Yeah, and then I was like अच्छा ठीक है. Then I realized कि कौन है सबसे टॉप पे. तो there is this guy in our, at least in India, was given 6. Nice. तो अच्छा जो किसी ने 3 दिए वो हमसे मिलने आया, तो मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई इसने 3 दिए, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता. Again that reverse psychology. Again reverse psychology. तो I said यार जुगाड़ लगाते हैं. Then I searched on internet क्या होता क्या नहीं होता. Then I realized there is this structure. So TEDx works on a licensee model. Okay. Different colleges apply and I think only 15 to 20% colleges get the license for a year. तो उनका क्या होता है कि 1 साल में आपको एक TED करवाना है. These days the scope is huge. Why? Because before a TEDx event they hold a lot of small events. For example, podcasting is one, webinar is one. जो small events जहाँ पे वो अलग अलग speakers को बुलाते हैं. But main is TEDx event. After that they have this obviously जैसे कोई XYZ college है, let's say DU का कोई कॉलेज है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएंगे जिसके पास भी लाइसेंस है, या तो टीचर के पास होगा या फिर स्टूडेंट के पास होता है, हु इज़ द सीनियर. टीम बनाते हैं जस्ट लाइक एन इवेंट, यू नो लाइक कॉलेज इवेंट विच टेक्स प्लेस. टीम बनाई, फिर ये लोग देखते हैं हमारा थीम क्या होगा. थीम इज़ अ ट्रिकी पार्ट बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज. ये मैंने सीखा कि आप जैसे अब जुगाड़ इज सर्चिंग ऑन इंटरनेट, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है. वन इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वन ऑफ माई TEDx इज आई फाउंड कि अच्छा XYZ ऑर्गेनाइजर है, अब इसको मैं अप्रोच कैसे करूँ. मैंने उसको इंस्टाग्राम किया, लिंक्डइन किया, कुछ नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं. अपेरेंटली वॉज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. उसके 2 साल पुराने पोस्ट थे. सो आई रियलाइज्ड, मैंने कहा क्या करूँ. सो आई वेंट टू दिस एक्सटेंड. मैंने कहा क्या करता है क्या नहीं करता. मैं उसके बारे में गूगल पे सर्च करने लग गया. अगर आप किसी का भी नाम डालो तो आता है. अच्छा करते ऑन 11th और 12th लिंक आई फाउंड आउट कि इसने कोई MUN दी थी अपने स्कूल में. MUN पे गए उस साइट पे, फिर देखा क्या है, तो पता लगा कि वन ऑफ माई बैचमेट्स यंगर ब्रदर वॉज हिज बैचमेट. तो मैंने उसको अप्रोच किया, तो कहता भाई कौन है, क्या है. मैंने उसको याद दिलाया ऐसा बंदा था. कहता हाँ कोई तो था. मैंने कहा भाई इसका नंबर दे दो. करते वहाँ से नंबर मिला. देन आई गॉट टू नो हिम. You cyber stalked your way into a TEDx talk. Amazing. ये अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है. देखो अगर कुछ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू रीच आउट टू द राइट पीपल, राइट. कई बार लोगों के थ्रू मिल जाते हैं, कई बार खुद ढूंढना पड़ता है, और कई बार घर के बाहर खड़े होकर जाके धरना दे के बैठना होता है, सर प्लीज़ शागिर्द बना लो. जैसे मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठने वाला हूँ कि साक्षर प्लीज़ यार मुझे कोच कर दे यार, मेरे को भी TEDx टॉक अपनी लाइफ में देनी है एटलीस्ट एक बार. आई एम नॉट दैट एम्बिशियस व्हेन इट कम्स टू इट. बट एक सवाल है, हैविंग सेड दैट आई वांट टू गिव अ TEDx टॉक क्यों देनी है? It's a very interesting question. Yeah. हर किसी की रीज़न लगे. So I've started this TEDx coaching now where I coach and guide different people and mentor them. मेरा first question ही होता है क्यों देनी है. Because for some people it's branding. For some people it's just a dream. कोई उसका सेंस नहीं, बस TEDx देनी है. For some people they are into public speaking field, so obviously credibility matters. आपके TEDx अगर आप कोच हो
कोचिंग इंडस्ट्री से आते हैं, आपके TEDx का ब्रांड आ गया तो इट एक्ट्स एज अ ह्यूज क्रेडिबिलिटी कि हाँ यार TEDx है, यू नो मैं एक्नॉलेज दैम। ये हो गया। फोर्थ इज कभी कभार क्या होता है कि पीपल सी इंटरनेशनल ब्रांड है TEDx। अच्छा हमारे यहाँ ना इंडिया में थोड़ा ऑब्सेशन भी है, इंटरनेशनल ब्रांड है। एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज बहुत लोगों को TED और TEDx में फर्क नहीं पता लगता। Yeah. TED is the mother body, where you know people like Steve Jobs, Bill Gates used to be there at Yeah. US. The biggest researchers in the world हाँ. are there. Somebody Then- profound, some Nobel Prize winners. Then they decided यार कि ये तो globally हम कितने speakers को ले सकते हैं। Then TEDx was made Yeah. on a licensee model. तो बहुत लोगों को लगता है बिल गेट्स इसमें है, स्टीव जॉब्स इसमें, मैं इसमें आ जाऊँ तो यार आई एम एट पार। ये भी एक वो रहता Yeah, है। of course. So there are different ambitions to it, but हाँ with respect to that, like in your case, I always say एक TEDx में मत वो रहो। एंड जनरली होता भी आप एक TEDx दे दो ना। For example, you are not doing stage activity, but still podcasting is, I would say, semi public speaking activity. Yeah. ठीक है, you are doing something in this regard. तो आपका ना हो जाता है एक क्यों और अब तो अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी खुल गई हैं कि हर साल कोई ना कोई कॉलेज करता रहता है। Yeah. सो आई फील करते रहना चाहिए, बिकॉज अब वो हो गया कि जितनी TEDx उतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी एंड आपको किक आ जाती है। जैसे मेरे लिए तो किक है, हम लाइक यार कि अब और करते हैं अब क्या है। Nice. This is you're a TEDx junkie now, right? Interesting. और तो बाकी बैड हैबिट्स हैं नहीं तुम्हारे में, ये तो मुझे जानता हूँ मैं ऑलरेडी। सो दिस इज़ वन गुड बैड हैबिट दैट यू हैव, दैट इज़ ग्रेट। So different universities are organizing TEDx talks across India, whoever gets the license. And of course, they would be having some sort of forms on their websites. Maybe they have these closed circles where they invite speakers. And then some people can also, आप भी किसी को recommend कर सकते हो, और हो सकता है आप self apply भी कर सकते हो, right? Depending on the topic, if they're interested in it. Very interesting. Like you said, कि किसी किसी का dream होता है. I remember watching a lot of TED talks while in college. और स्कूल में क्या हाल था मेरा, स्कूल में इंग्लिश के नाम पर नील बटा सन्नाटा था। मतलब आई वॉज somebody who was inferior to my peers all the time because I had a very we had a very good quality of students in our school, coming from very good families. और क्या फर्राटे से इंग्लिश बोलते थे यार मेरे क्लासमेट्स, यू नो, एंड आई यूज्ड टू फील यार क्या है यार ये लोग क्या बोलते रहते हैं, समझ में आता है बट I couldn't express myself as clearly like them. I was always like that. क्रिकेट खिलवा लो, बातें करवा लो, मस्ती करा लो, पढ़ाई करा लो, I was a geek, सब कुछ. That was my image कि ये पढ़ाकू बच्चा है और क्रिकेट भी खेलता है. लेकिन when it came to actually expressing myself, even posing a question in the class, my English was terrible. I remember this it's sad, but I remember this moment जब वहाँ हिस्ट्री की हमारी टीचर थी और वो उन्होंने कुछ बताया तो मैं खड़ा हुआ, उनको जवाब भी दिया इंग्लिश में बड़े स्टाइल में, बड़ी कॉन्फिडेंटली, और मैंने अपना सवाल भी पूछा एंड शी लुक्ड एट मी ब्लैंकली सेइंग है क्या बोला, एंड दी अदर इंटायर क्लासरूम वाज लुकिंग एट मी कि पूछा क्या इसने, क्योंकि मैंने तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोली है और मैंने क्या बोला है मुझे नहीं पता है. तो मैम ने शी करेक्टेड माई क्वेश्चन ही सेड एंड शी सेड आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू आस्क दिस. And I will never forget that moment where somebody else had to correct my question to the other people in the room just to make them understand कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ. कॉलेज हिट, तो कॉलेज में क्या करते हैं हम सबसे ज़्यादा, हम पिक्चरें देखते हैं खाली बैठे, और स्पेशली मेरा वाला जो टाइम था ना कॉलेज का, वो उसमें ये होता था कि टॉरेंट चलता था दबा के, एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू डाउनलोड दीज मूवीज़. घर पे इतना सॉलिड इंटरनेट नहीं था मेरे पास, सो आई यूज्ड टू टेक सम मूवीज़ फ्रॉम देम और मैं देखता था. And I fell in love with movies like Forrest Gump, you know, and then there was a lot of Morgan Freeman stuff that I watched. Then I realized Morgan Freeman क्या बोलता है यार, you know. So मैंने क्या करना शुरू करा, one technique that I used to improve my English was मैं books पढ़ता था तो I used to read them aloud. And I used to imitate Morgan Freeman while reading them. You know, in that crisp voice, in that, you know, जिस तरीके से punctuate करते थे ना वो, हर वर्ड को वैसे इनसेट करना और उस तरीके से बोलना. एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग दैट. इट वाज सो मच फन टू डू बिकॉज क्योंकि कमरा बंद होता है व्हेन यू आर अ बैचलर एंड नोबडी इज अलाउड इन योर रूम एंड यू आर डूइंग योर थिंग. वो ग्रोथ पीरियड था मेरी लाइफ का लर्निंग वाइज. I learned how to play the guitar there. I learned how to actually write things. My typing became better. I started writing things. I started reading a lot of books. और वो इंग्लिश भी वहीं इम्प्रूव हुई मेरी हल्की सी. फिर कॉलेज में जाके पता चला कि यार मैं तो एक छोटे तालाब में बड़ी मछली हूँ.
तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ भी बढ़ा मेरा कि अरे आई थिंक आई कैन डू बेटर हियर, बिकॉज वहाँ इन्फीरियोरिटी वाली फील नहीं थी, स्कूल वाली जो कंपैरिजन में थी. आई रिमेंबर यू टेलिंग मी दैट यू आर अ शाई किड एंड दैट यू हैड स्टेज फ्राइट. तो भाई साहब ये कब बदलाव आया आपके अंदर, और आप हाउ डिड यू ओवरकम इट, या फिर सब कुछ चैलेंज से ही चल रहा है लाइफ में कि नहीं साक्षर तुझसे नहीं होगा, साक्षर कहता है कैसे नहीं होगा. हाउ डिड यू ओवरकम इट, एंड डू यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम योर स्कूल डेज वेयर इट वॉज समथिंग गुड स्टोरी दैट यू हैव मे बी यू नो विच कैन इंस्पायर अस कि हाँ बदलाव कैसे करते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक Please. व्हेन यू वर टेलिंग मी. सो स्कूल में क्या था, आई यूज्ड टू स्टैमर. ओके. व्हाई? बिकॉज आई वाज बुलीड बहुत. ओह. कि भाई हमारा क्या होता था स्कूल में ना कि क्लासरूम्स के बाद ब्रेक जब होती थी तो स्टील की बॉटल्स आती थी मिल्टन की, तो ना मारम पिट्टी उससे होती थी. तो उससे क्या होता था, जो भी मतलब थोड़े मतलब हट्टे कट्टे जो बंदे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, वी वर व्हाट इन 3rd 4th स्टैंडर्ड, तो वो खेलते थे, और जो भी कोई होता था चुपचाप उसको पकड़ के मारो, ये होते थे उसमें. अच्छा, अब मेरा क्या था कि शुरू से विद इंग्लिश, मेरे पूरे खानदान में सबकी इंग्लिश अच्छी है. क्यों? दे यूज्ड टू रीड बुक्स, ऑल माई कजन्स, छोटी बहन, सब कुछ शुरू से बुक्स. अच्छा, मेरे को बुक्स पढ़ने का कोई शौक नहीं, तो मुझे अच्छी लगती थी. आई यूज्ड टू लिसन, जब मॉम बचपन में सुनाती थी आई यूज्ड टू लिसन, बट कोई शौक नहीं था. बिकॉज फैक्टर क्या था, मॉम मैं कहता था क्यों पढ़ूँ, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. एंड दैट वाज नॉट अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार क्या करूँ, इंग्लिश अच्छी करके. स्कूल में भी इंग्लिश ही सीखते हैं, हिंदी से भी काम चल ही रहा है. हिंदी से काम चलता है. हाँ. सो ठीक है, इंग्लिश आती नहीं थी, एंड सेम फैक्टर, मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस है नहीं. मार्क्स भी ख़राब आते थे, तो मार्क्स भी ख़राब आते हैं तो जी कुछ नहीं. अच्छा जी, ब्रेक में क्या होता था, चुपचाप बैठता था, तो जो गेम खेलते थे पकड़ के सीधा स्टील की बॉटल से मारते थे कि ये वो है. अच्छा, और कॉन्फिडेंस डाउन किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. तो स्टैमरिंग होती रहती थी मेरी बहुत. आई यूज्ड टू नेवर टॉक, इधर इट वाज अ नॉड यस और नो, और नो भी बड़ा नो करके निकलता था पूरा. तो बहुत बैंड बज रखी थी. फिर एक वन इंस्टेंस विच आई रिमेंबर वाज, सो साक्षर मीन्स माई नेम, साक्षर मीन्स लिटरेट. एंड हमारी हिंदी बुक्स में ना इसका एक प्रायवाची आते थे ऑपोजिट्स. तो उसमें आता था साक्षर और दूसरा था निरक्षर. निरक्षर मीन्स अनपढ़. तो होता क्या था कि हमारी हिंदी टीचर थी, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर. अच्छा, हम कर रहे हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड, मेरा नाम आ गया, बुक में नाम आ गया, तो ऑपोजिट्स आ रहे हैं. जैसी आया, अच्छा साक्षर, वो क्या होता था, वो शी यूज्ड टू से अ वर्ड एंड शी यूज्ड टू से कि भाई इसका ऑपोजिट बताओ. जैसे आई वाज वेटिंग, जैसे साक्षर है मैं हाथ उठाऊंगा, साक्षर आया तो हाथ उठा दिया मैंने. तो उसने भी खड़ा करा दिया, तो मैंने कहा निरक्षर. कहती है ये देखो, पहले तो उसने क्लैपिंग करवाई, कहती है देखो नाम इसका साक्षर है बट है ये निरक्षर. कितनी बड़ी आयरनी है लाइफ की. आई यूज्ड टू रिमेंबर, अभी भी ना आई एम लाइक ये यार, वो कुछ वही एज यू सेड, कुछ चीज़ें याद रहती हैं. अच्छा बैठ गए. अब हुआ क्या, वही ड्यूरिंग माई आई थिंक बिफोर 11th स्टैंडर्ड स्टैमरिंग थी, बहुत स्टैमरिंग इधर उधर. थिएटर वॉज वन प्लेस वेयर आई कुड बी, इट वॉज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी. आई कुड ओपन बिकॉज आई न्यू यहाँ कोई मेरे को नहीं छेड़ सकता. पता नहीं वो एक साइकोलॉजी थी क्या थी कि ना स्टेज बड़ा होता है, लोग यहाँ बैठे होते हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर हूँ, मैं यहाँ कोई मेरे को नहीं छेड़ेगा. एग्जैक्टली. और ये मुझे देखने आए हैं. हाँ, ये मुझे देखना है, तो आई यूज्ड टू बी देयर. बट स्टैमरिंग थी. अच्छा, मॉम ने बड़ी ट्राई किया घर पे, कुछ ना एक्सरसाइज करा के थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, बट एक पॉइंट के बाद नहीं आ रहा था इंप्रूवमेंट. सो बड़ी दिक्कत थी. क्या थी, फिर बीच में लिस्प करना भी शुरू कर दिया मैंने. तो मॉम को बड़ी दिक्कत कि यार मतलब क्या करें इसको, तो एक्सरसाइज कराओ, ये कराओ, हो नहीं रहा था. बट सूनर और लेटर व्हेन आई वाज इन 10th आई रियलाइज कि यार ये ना स्पीच डिफेक्ट वाली चीज़ नहीं है, दिस इज़ मोर रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस. कि आसपास सराउंडिंग्स क्या है, कि मार्क्स है, इंग्लिश है, वो मेरे को आती नहीं थी ज़्यादा. यू रियलाइज दिस? हाँ, आई रियलाइज बाय द टाइम आई वाज इन 9th and 10th आई रियलाइज दिस. मैंने कहा कि यार एंड आई रियलाइज दिस विद द फैक्ट दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी विद माय क्लोज फ्रेंड्स, तब स्टैमरिंग मेरी 90% नहीं होती थी. सो देन आई रियलाइज नहीं यार, ये डिफेक्ट तो नहीं, दिस इज मोर रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस थिंग. सो फिर थिएटर में हमारी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं स्पीच की. एक पेंसिल एक्सरसाइज होती है, आप पेंसिल को मुंह में रखो एंड बोलो, जिससे आपका स्पीच जो है क्लैरिटी आएगी. स्टैमरिंग की बड़ी एक्सरसाइज होती हैं, वो करी मैंने 9th 10th में भर के, नॉट इन स्कूल बट हाँ अलग से भर के. एंड यू नो अगेन दीज थिंग्स, वही मोटिवेशन. मैं तो देखो मोटिवेशन पकड़ने में बिलीव करता हूँ कि आपको कुछ पहले आई यूज्ड टू फील बैड यू नो विद दीज इंस्टेंसेस, निरक्षर साक्षर ये वो. आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग. मैंने कहा नहीं यार, ये यही तो ड्राइव दे रहा है यार. एग्जैक्टली. वो लिया, एक्सरसाइज की, करते इन 10th स्टैंडर्ड आई गेव माई फर्स्ट टॉक इन अ स्कूल. मुझे याद है उसकी मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी कि यार कुछ भी हो जाए कंटेंट तो नहीं भूलूंगा बट स्टैमर नहीं करूँ. बिकॉज ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अगर आप एज अ स्पीकर कितने भी नॉलेजेबल हो बट आप थोड़ा स्टैमर करते हो, ऑडियंस फिर ना
बोले थे हाँ जी ये क्या है, वो एक साइकोलॉजी होती है कि ये क्या बोल रहा है, हम तो इससे अच्छा बोल रहे हैं। Yeah. सो 9-10 में हुआ, धीरे धीरे करते देन इन 11th सो आई यूज्ड टू हेट मैथ्स। वो नेचुरली प्रोसेस था। आई यूज्ड टू हेट मैथ्स, इतना कि मैथ्स के चक्कर में मेरे सारे मार्क्स खराब आते थे। Ah. सो 10th के बाद जब मैंने वेंट टू 11th ह्यूमैनिटीज़, तो एक प्रेशर वहाँ ऑफ हो गया, मैथ्स गई तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा सोशल स्टडीज़ में थोड़ा पकड़ थी मेरी। सो इन 11th नेचुरली मतलब आपका जो सब्जेक्ट था मैथ्स हट गया, एक्सरसाइज भी कर रहा था, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा आ गया। Very good. सो आई यूज्ड टू लव म्यूजिक एंड डांस, तो उस टाइम एक्टिविटीज थोड़ी होने लगी तो और आई वाज ऑन स्टेज। Yeah. तो मिक्स ब्लेंड करके फाइनल प्रोडक्ट, देन आई वाज आउट। आज भी थोड़ा व्हेन आई एम स्पीकिंग लिटिल फास्ट थोड़ा आई स्टैमर समटाइम्स, बट वो चलता है। वो अब वो जैसे कहता है ना, वो चीज़ खत्म हो गई है। साक्षर, मैं 1.5 साल से तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्टैमर करते नहीं सुना है। यू आर ब्लडी ब्रिलियंट एंड आई डोंट थिंक स्टैमरिंग इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक यू आर अमेजिंग, दैट इज़ वॉट इज़ हायर देन एनीथिंग एल्स। एंड बाय द वे, ये डांस बहुत अच्छा करता है, मैं बता दूँ तुम्हें, एक्टिंग के अलावा। आज प्ले भी है इसका, मैं देखने जा रहा हूँ। अमेजिंग इनसाइट साक्षर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद अस। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग कोई भी बात अपनी ये जो होती है ना, मोटिवेशन कैसे आती है, अगर आप मोटिवेटेड हो तो शायद वो जो बुक आप पढ़ रहे हो विच गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट माइट हेल्प यू। एटॉमिक हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वट एवर, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, इट माइट हेल्प यू व्हेन यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। इट जस्ट गिव्स यू दैट क्लैरिटी कि हाँ और फोकस करना है, तो वो थोड़ा सा और आपको शार्प कर देता है टुवर्ड्स योर गोल मे बी। बट अगर कोई कंप्लीटली डीमोटिवेटेड है अपनी लाइफ में और आप वो किताबें पढ़ा दो, उसको कुछ नहीं होने वाला। बट ये जो छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली बड़े ट्रिगर्स हैं। दैट इज़ वेयर यू नो आई कीप सेइंग दिस, दैट इज़ वेयर अ मैन इज़ बॉर्न, यू नो। ट्रू ब्रिलियंस इज़ बॉर्न इन एडवर्सिटी, यू नो। जब वो लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गोना कन्फर्म विद दिस आइडिया दैट आई एम, देयर इज समथिंग शॉर्ट इन मी, नो। अगर है तो फिर क्या है, देख लेते हैं, काम तो करके देखते हैं, आगे तो बढ़ के देखते हैं। ये हमेशा होता है। आई रिमेंबर दिस इन कॉलेज की, कॉलेज में जैसे मैं गया फर्स्ट ईयर में, तो आई सॉर्ट ऑफ, मैंने कॉलेज से पहले 2 साल आई रैन अ लॉट, एवरी डे 10 किलोमीटर्स आई वाज रनिंग, आई वाज एक्सरसाइजिंग, आई वाज वर्किंग आउट, आई वाज ईटिंग राइट, आई वाज रीडिंग अ लॉट, बहुत बुक्स पढ़ी मैंने। और स्कूल के बाद और कॉलेज में ना 1 साल का गैप था मेरा। वो गैप ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, बट द ओनली रीज़न I think I did not undergo any sort of social anxiety, depression, any sort of all those things was because I was exercising. जिम जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। तो जब मैं कॉलेज में घुसा फर्स्ट ईयर से ना, तो देयर वाज दिस पर्सनैलिटी विच वाज अ कॉन्फिडेंट फेस दैट आई हैड, आई थिंक नथिंग एल्स, एंड पीपल नोटिस्ड इट बिफोर मी फॉर सम वियर्ड रीज़न दैट आई गॉट अ वेरी गुड रिसेप्शन आउट ऑफ इट। कि एक मुझे वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रूवल मिलने लगा वहाँ कि अरे क्या हाल है, अरे ये तो कर लेगा। I'm like, इनको कैसे पता और मुझे क्यों नहीं पता ये बात? How do they know that I'll be able to do something which I don't know I'll be able to do? What do they see in me? I genuinely asked my friends who were close to me कि यार तेरे को ऐसा क्या दिखा, बताना एक बार। मैंने वहीं रियलाइज़ करना शुरू करा कि दोस्ती उस बैंटर में नहीं है, बैंटर में है दोस्ती, लेकिन दोस्ती शायद उस सपोर्ट सिस्टम में भी है जो कई बार अनडिजर्व्ड फील होता है और वो रैंडमली मिल जाता है। यू नो व्हाट आई मीन? वो जो सपोर्ट जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए, तो यू लाइक ओके थैंक यू सो मच, यू नो, यू हैव दैट, यू डोंट नीड अ शोल्डर टू लीन ऑन, बट समटाइम्स दैट लिटिल सपोर्ट गिव्स यू, पर्सन स्टैंडिंग, इट ओपन्स अप योर विंग, अ पर्सन स्टैंडिंग, समबडी बीइंग देयर, दैट्स इट। कह रहे तू करना यार। दैट इन द फर्स्ट ईयर दे मेड मी स्टैंड ऑन स्टेज। ऐसे वो कॉलेज का ही वो था कि फेस्ट होता था, तो वो फ्रेशर्स डे पे या क्या होता था वो, एंड दे लाइक व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस। थर्ड ईयर आई वन दी फेस्ट में, वो मिस्टर वाला कौन सा पैजेंट होता है वो जीता था मैं। फिर आई वेंट टू NSIT, वहाँ कुछ जीत के आया मैं। देन आई वेंट टू DC, वहाँ कुछ जीत के आया मैं। आई एम लाइक दिस इज क्रेजी। बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर what had happened was, rather than just knowing what I was studying in college, the best education that I received was about myself. मैं थर्ड ईयर एंड तक अपने बारे में सब जानता था कि ये मेरी शॉर्टकमिंग है, मुझे इन चीज़ों से चिढ़ है, मुझे ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल हैं, दीज आर द थिंग्स आई वैल्यू द मोस्ट, दिस इज़ हाउ एम्बिशियस आई एम, दिस इज़ हाउ लेजी आई एम, सब कुछ पता चल गया था। ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि ये वही अंडरस्टैंडिंग है जहाँ दिमाग में बस वो स्विच ऑन हो जाता है कि नाउ आई कैन नॉट फेल।
And the moment you realize that you cannot fail, I think You're that free. is where you're free, that is where you're growing. फिर आप उसके बाद कुछ भी कर लो यार लाइफ में. सेटबैक्स आती रहेंगी, पर्सनल प्राइवेट हर तरीके की सेटबैक्स लाइफ में आती रहेंगी. मैंने कल बिफोर आई वॉज प्रिपेयरिंग टू स्पीक टू यू टुडे, तो कुछ थोड़ा सा मैं सोच रहा था रिसर्च करूँ कि व्हाट विल आई आस्क साक्षर, यू नो, किस तरीके के सवाल पूछूंगा. मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए कुछ. तो मैंने गूगल पे गया, मैंने लिखा हाउ टू ओवरकम, एंड आई वांटेड टू राइट स्टेज फ्राइट. लेकिन जैसे मैंने लिखा हाउ टू ओवरकम, तो गूगल ने मुझे 8-10 ऑप्शन भेजे जिसमें आया एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, लैक ऑफ स्लीप, व्हाट नॉट यार. सो लोगों के पास इतनी सारी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक व्हेन दे हैव अ एम इन प्लेस एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, ये वाली प्रॉब्लम्स दिखेंगी ही नहीं शायद. पता नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ इस बारे में, बट हो सकता है लोग एग्री ना करें, 4 गाली भी दें मुझे इस बात में. बट मुझे लगता है जो एमलेस है, एटलीस्ट व्हेन इट्स अ यंग पर्सन एंड दे डोंट हैव दैट इनसाइट कि यार ये करने का, आज सुबह उठूँगा तो ये करना है मुझे, तो वो ही सोशली एंग्शियस है, वो ही थोड़ा सा सैड है अपनी लाइफ में, और उसी को नहीं पता कि क्लूलेस होने की वजह से वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है. ऑफ कोर्स हो सकता है कि और अदर शॉर्ट कमिंग्स हो विच वी कैन नॉट फैथम बिकॉज अ माइंड इज़ अ ट्रिकी प्लेस. साक्षर, आई कीप सेइंग दिस टू यू ऑल द टाइम कि यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट. आज तुम्हारी एक्टिंग का प्रमाण भी हम देख लेंगे फिजिकली आके, विच आई ऑलरेडी नो दैट यू आर अमेजिंग एट. वाई थिएटर फॉर यू? So why theatre for me? I think it's my calling for sure. Acting, that is my calling, and that has helped me everywhere. Public speaking, maybe people say यार आप expression कहाँ से लाते हो? मैं बनाता नहीं हूँ, naturally इतनी 10 साल से training मिल गई है. But before this point, I would like to add upon two things. Please. So one thing you said, देखो मैं ना I love tracking successful people, खासकर sports personalities. Very nice. Michael Jordan, Messi, Tendulkar. What is the when I was in 11th standard, तो मैंने थोड़ा और पढ़ना शुरू किया. So I realized one thing. मैंने कहा यार ये 3 लोग, I closely track them, I love them. मैंने कहा इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने अपनी जो शॉर्ट कमी थी उसको स्ट्रेंथ बना लिया. माइकल जॉर्डन was not athletically is not the most perfect being. अभी अब लेब्रॉन जेम्स वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं naturally. Yeah. मेसी छोटी हाइट, टेंडुलकर छोटी हाइट. So what is their strength? अगर आप उनके स्पोर्ट्स में देखो, they made their biggest factor is जो भी weakness है ना, that is your biggest hope and that is your biggest trigger to make your strength. मेरे को भी जब स्टैमरिंग थी कहीं ना कहीं इंसाइट था, बट ये पढ़ने के बाद और बिलीफ हो गया कि भाई इससे ही कुछ बनाऊंगा. Wow. Look at now these people, you know, Messi is known for what? He's known for dribbling. बीच में से लोग निकल जाते हैं. क्यों? Because of his height. He's known for creating magic. Creating magic. He thought भाई मेरे पास naturally कुछ नहीं, ये है वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ बनाऊंगा. In short, that is the mentality. Yeah. But Tendulkar भाई लोग कहते हैं भाई बाउंसर आ जाएगी क्या करेगा? भाई बंदे ने हुक शॉट इन्वेंट कर लिया. माइकल जॉर्डन अच्छा नेचुरली नहीं है. व्हाट इज माई स्ट्रेंथ भाई? माई स्ट्रेंथ इज नेचुरली यू नो रीडिंग द गेम, गोइंग थ्रू द गेम. सो मेरे कहने का मतलब है कि वट एवर इज योर वीकनेस विच वी फील, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज दैट यू सेड आई वॉन्ट टू ओवरकम. आई थिंक दिस इज अ डोंट ओवरकम. वाई? बिकॉज ओवरकम आप जब बोलते हो ना, विच इट मीन्स दैट यू वॉन्ट टू यू नो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है. I know what you mean. That is the first perspective different होता है. डिफरेंट हो जाता है कि यार ओवरकम अच्छा मतलब कुछ ह्यूज है, अब तो नहीं हो सकता. डोंट ओवरकम. इट्स समथिंग दैट आई थिंक दैट्स अ गिफ्ट. इफ आई टुडे फील स्टैमरिंग वाज अ गिफ्ट टू मी. व्हाई? स्टैमरिंग थी तो कुछ वहाँ इंप्रूवमेंट थी. जब इंप्रूवमेंट हुई तो आज सारा काम स्पीकिंग से हो रहा है. अगर उस टाइम स्टैमरिंग इंप्रूव नहीं करता तो ना थिएटर होता, ना स्पीकिंग होती, ना आपके कहीं कुछ बोलना होता. दैट वाज इनडायरेक्ट. आई नेवर न्यू कि भाई आगे की चीज़ होगा, बट वहाँ काम नहीं किया. अगर आज किसी की कोई वीकनेस है, स्टैमरिंग हो गई, स्टेज फ्राइट हो गया, कुछ भी हो गया, इंग्लिश हो गई, आई पर्सनली फील दैट इज़ योर बिगेस्ट कॉलिंग. वहाँ काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा. एंड डोंट ओवरकम, यू जस्ट हैव टू डू इट यार. डू इट लाइक अ टास्क. कर लेंगे. ओवरकम जहाँ लगा दिया, इट्स लाइक अरे भाई माउंट एवरेस्ट. लाइक फॉर मैथ्स, फॉर मी टुडे आई थिंक आई यूज्ड टू हेट मैथ्स, बट why now I think because I used to feel यार ये करना पड़ेगा. I have to overcome my fear of maths. टीचर्स भी बोलते थे you have to overcome your fear. आज I realize कि नहीं यार, ओवरकम बना के ना इतना बड़ा हवा बना दिया. Yeah. So that's I think everything is about psychology. Exactly. You start taking small bites around the giant. धीरे धीरे और फिर गुलायत भी गिर जाता है. कोई बड़ी बात नहीं है. लास्ट ईयर क्या हुआ कि स्पेसिफिक आस पे वी वेंट वायरल लाइक ट्वाइस, आई थिंक. क्रेजी वायरल. वो बात अलग है कि मैंने उसके बाद 6 महीना थोड़ा सबैटिकल लिया इस पॉडकास्ट से. वन ऑफ द वायरल रील्स, अ फ्रेंड ऑफ माइन बैक फ्रॉम स्कूल, सौगत साहा,
what a speaker, man. That boy was, Saugat was, he spoke so well, with so much confidence. He was the guy, you know, like when growing up, like class 8, 9, 10, Saugat was a champ. I remember एक teens camp होता था हमारा. He used to be that leader in the group, you know, like the one who stands out. He texted me. कहता, अरे, is this you? I'm like, yeah. कहता, dude, you're doing well. अच्छा बोलता है यार. ऐसा करके कुछ उसने मुझे compliment भेजा. And coming from somebody like Saugat, I'm like, भाई, I've always looked up to you, you know, like कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके आप ही के peers हैं, but you're fans of them. कि यार, this guy was amazing, right? You're absolutely right about overcoming things, right? Overcome तो अपने आप हो जाएगा वो. It's a process. And enjoy the process while you can. थोड़ा करके bite करते जाओ. There are amazing things ahead of you. I think sometimes it begins with a change of mindset. You're absolutely right. But can you actually push and change your mindset to change something? That is something that you've depicted, you know, in your story and your journey. Sometimes it begins with something bigger. I was discussing this with a couple of friends of mine and I said, यार, हम लोग ना अपने privilege को acknowledge नहीं करते. We are privileged and we don't acknowledge it. अबे भाई, पानी पीने को मिल रहा है ना, thank you for that water. यार, खाना खाने को मिल रहा है ना, thank you for that food. AC में बैठे हैं, AC गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, thank you for everything. AC से निकल के AC में बैठ के फिर AC में जा रहे हैं. किस बात की गर्मी फील हो रही है यार हमें? We are privileged and we don't acknowledge it. I have a bone to pick with Gen Z right now. अब वो Gen Z के बाद मैंने सुना कुछ और नया भी आ गया, Gen Alpha. अब Gen Alpha I hope will do better, but Gen Z का जो सीन हम लोग day in day out डिस्कस करते हैं आपस में. And I am much older than Gen Z. अंकल बुला सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Gen Z के साथ जो बोन पिक करना है ना मुझे, वो ये है कि they think they have a reputation to protect when they have none. There is that big ego there, which is, I still have to understand what it stems out of. You are Gen Z. Yeah, I'm Gen Z. कहाँ है भाई वो ईगो? रेपुटेशन तुम बिल्ड कर चुके हो और कर भी रहे हो. यू डोंट फील लाइक दिस कि यार नहीं यार, थोथा चना बाजे घना वाला सीन है यार बहुत ज़्यादा Gen Z में. ऐसा क्यों है वो? You have a lot of peers. Am I wrong? There's a very interesting thing to it. Number one, थोड़ा टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट कर. कोई बात नहीं. सोशल मीडिया में अगर लाइक्स आ गए तो इफ आई गेट 200 लाइक्स, अच्छा 2 लोग मुझसे बात नहीं करते, 200 लाइक आ गए तो यार कुछ तो है मेरे. वैलिडेशन. बट द बिगेस्ट अगेन माइंडसेट. बहुत छोटी सी चीज़ बोलूँगा. अब हमारा क्या होता है, रील्स देखते हैं, अंबानी की कोई वेडिंग हो रही है, अच्छा उसमें क्या होता है, वेडिंग ठीक है बट व्हाट इज़ अ माइंडसेट. भाई तुम कितने गरीब हो, वो कितने अमीर है. यस. यू नो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. आप सोचते हो कि यार अच्छा आई एम लाइक दिस तो माइंडसेट हो जाता है. इफ़ यू आस्क मी, मेरा होता है यार कि अभी कुछ नहीं किया भाई, तो बहुत अभी तो कहाँ है. इफ यू सी द बिगर पिक्चर, यू आर नथिंग. आप अंबानी से पूछोगे वो भी ये कहेगा कि यार अभी क्या किया है. मुझसे बड़े जेफ बीजोस बैठे हैं, मुझसे बड़े एलन मस्क बैठे हैं. एंड इफ यू आस्क एलन मस्क, ही सेड भाई अभी क्या किया, अभी तो चांद पे जाना है. हाँ, अभी मार्स नहीं गए, अभी ये नहीं किया. तो आई थिंक वही लिमिट वाली बात है, माइंडसेट वाली बात है कि अगर आपने आज मैं इतने उसमें हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ, वो कहता है ना गली का हीरो मैं, तो ठीक है. इफ़ यू सी द बिगर पिक्चर, यू लाइक यू आर नथिंग. जो आपको वो टाइम ही नहीं है कि यार अब मैं आ गया हूँ. I've arrived. You never arrive. There is a lot to do all the time and there's always someone better than you. हमेशा मिल जाती. तो arrogance किस बात की है यार? What is the day you start becoming too confident saying I am it, life will throw you down sometime and show you that you were not it. There's someone better around the corner all the time and you're easily replaceable. If COVID has taught me something and taught the world something, that everything is temporary. Nothing is permanent यार. और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोगों को, मतलब आज भी नहीं पता है. I read something about अभी पीछे पता नहीं what was it. It said something like a man is born in adversity, a man is created, or a man is actually truly born when there is a setback. कुछ हिट करता है ना किसी को, उसके बाद आप जागते हो कि यार ये क्या हुआ. मैं छोटे भाई की कहानी सुनाता हूँ अपने अंतरिक्ष की. He's about to come and you get to meet him today as well. He's a chartered accountant. He did his law from Faculty of Law, Delhi. वो unfortunately like during the course of time we lost our father. Otherwise शायद उसकी लाइफ का कोर्स कुछ और होता. We felt responsibility at a very young age. He hated maths like you. प्री बोर्ड्स में 3 मार्क्स आए थे 100 में से उसके. प्री बोर्ड्स में 3.
12th में 3, यू कैन काउंट दीज ऑन द फिंगर राइट, लाइक 1 2 3, और एक और सब्जेक्ट था उसमें शायद 1 या 2 ही मार्क्स थे. दैट टेल्स यू कि ही इज़ नॉट पुटिंग इन एन एफर्ट. वो एग्जाम में कुछ तो कर सकता होगा ना, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स का. ही इज़ नॉट पुटिंग इन द एफर्ट बिकॉज ही डजंट वांट टू. तो मेरे डैड ने वही कि बेटा कोई बात नहीं, हर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, तू चल मेरे साथ कल काम पे, मैं तुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा. मेरे डैड ने उसको पेलना शुरू कर दिया. अगले दिन से ऑफिस ले गए और लेबर के साथ खड़ा कर दिया बाहर कि चलो रिक्शे लोड कराओ, ट्रक लोड करवाओ. भाई साहब 3 घंटे बाद आया, डैड के सामने डायरी रखी, पेन रखा. डैड एक चांस दे दो यार प्लीज़, एक. बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट माई फादर वॉज सच, ही हैड सच कन्विक्शन कि अगर आज वो अड़ गए तो उसको यही करना है अब लाइफ टाइम. तो बेचारे ने हाथ जोड़े कि इसके बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. बॉस, दैट वॉज दैट मोमेंट वेयर ही वॉज बॉर्न. और हम कभी भी तीनों, मैं मम्मा पापा कभी भी बाहर घूमने गए होते थे, घर आते थे, घंटी बजती थी ना, तो उसकी चेयर सरकने की आवाज़ आती थी स्टडी टेबल पे से, बिकॉज ही यूज टू कम एंड ओपन द डोर. आई रिमेंबर दिस डिस्टिंक्टली कि उस घर में ऐसा था, वो स्टडी टेबल ऐसे कॉर्नर में थी, व्हेन इट यूज टू मूव, वो चेयर मूव करती थी और झर्र करके आवाज़ आती थी कि अच्छा चेयर से उठाया. तो ही रियली लैच्ड ऑन टू दो स्टडीज़. और आई विश आई कैन टेल सो मैनी स्टोरीज मेरे भाई की, इतनी सारी. आज सुबह हम बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वो उसी कॉलोनी में हम थे जहाँ बचपन में हम बड़े हुए हैं. तो वी टुक अ वॉक अराउंड दैट पार्क एंड ही सेड भाई आज ना सब बचपन याद आ गया. मैं कहा क्यों? कहते यार सीए का एग्ज़ाम देके मैं आता था और एग्ज़ाम के बाद ना मैं आधा घंटा नीचे वॉक करता था और वो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता था मेरे हाथ में होता था, मैं उसको कभी ऊपर नहीं लेके गया. मैं कहा क्यों? कहते मैं आधा घंटा घूमता था, सोचता था मैं क्या करके आया हूँ, अगर अच्छा हो गया, अगर बुरा हो गया, आधे घंटे बाद वो क्वेश्चन पेपर मैं यहीं फाड़ के यहीं फेंक जाता था डस्टबिन में और वापस ऊपर जाता था कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी. तो दैट वॉज अ वे ऑफ क्लोजर फॉर मी. इट इज़ सच एन अमेजिंग इंसाइट फ्रॉम अ किड जो भी 1.5 साल पहले 3 मार्क्स आए थे जिसके मैथ्स में, और वो इतना मच्योर है वैसे दैट ही नोज व्हाट क्लोजर इज एंड ही इज डूइंग दैट ऑन दैट एग्जाम डे एंड प्रिपेयरिंग हिज माइंड सेट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. और कहता मम्मा पूछती थी यार एग्जाम कैसा हुआ, मैं कहा अब जो हो गया कल देखेंगे. दैट इज, एंड ही डिड नॉट पास हिज CA फाइनल इन लाइक अ सिंगल अटेम्प्ट. 2 अटेम्प्ट लगे उसको, 3 अटेम्प्ट लगे. फॉर समबडी वेन एवर यू टेक दैट सेटबैक एंड यू ग्रैब इट बाय द कॉलर एंड से कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा. दैट इज द, आई थिंक दैट इज द साइन ऑफ यूथ. That is what the Gen Z sort of needs to realize, and I really hope that Gen Alpha already realizes it. There is a lot to learn from everybody. और ये आज डिसाइड हो गया कि साक्षर मुझे चेला बनाना है, so I'm taking his coaching for TEDx. If you have any questions, write to us at theSpecificAsk@gmail.com. Sakshar, thank you so much for coming. You've made my day. I've learned a lot from you today. I hope you had a good conversation and enjoyed your morning. Loved it. Awesome. Follow us on Instagram at The Specific Ask and write to us there. We've posted our audios on Spotify. Soon you'll find them at Apple Podcast, Amazon Music, and JioSaavn Pro as well. So sorry for being unavailable for the last 6-7 months. I was kind of on a sabbatical. Now we are back with a new flair. शुरुआत साक्षर से की थी, दोबारा शुरुआत साक्षर से की है. तो ये स्पेसिफिक आस्क 2.0 कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई एम ट्राइंग रियली वेल एंड रियली हार्ड टू मेक सम अमेजिंग कंटेंट एंड कॉन्वर्सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू. सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.